Okay, dear students, welcome again. Okay, today we are going to start our next unit, genetics and evolution. So in this unit we have to discuss about a lot about genetics and the concepts of evolution. So initially I am going to start the chapter number 5, principles of inheritance and variation. But I am going to tell you that this is very important unit for the view of your board examination, and the weightage of this unit is of 18 marks in your examination. Okay, and a lot of questions will come from this unit, so you have to be more attentive while studying this unit. So I'm going to start the very fifth one chapter, principles of inheritance and variation. Now I want to put up a question to you. Have you ever wondered why an elephant always gives birth only to a baby elephant and not some other animal? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हर कोई सोचता है कि यार हाथी का बच्चा आखिर हाथी ही क्यों पैदा होता है. ठीक है. सिमिलरली, और वाई अ मैंगो सीड्स फ्रॉम फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट. ठीक है, बात बहुत छोटी सी है, अगर सोची जाए तो बहुत बड़ी भी है. ठीक है, हाथी का बच्चा एलिफेंट ही क्यों पैदा होता है, और मैंगो ट्री से जो सीड पैदा होता है, उस सीड को अगर हम बोने जाते हैं तो आफ्टर ग्रोइंग इट फॉर्म्स अ मैंगो ट्री. वाई इट इज़, ऐसा क्यों है? Given that they do, are the offspring identical to their parents, or do they show differences in some of their characteristic? One more thing which we have to think about it. ठीक है, कि आखिर जो ऑफस्प्रिंग मीन्स न्यू जनरेशन. ठीक है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होती है, यानी जो बच्चे होते हैं, आर दीज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, क्या ये अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, और डू दे हैव सम डिफरेंसेस अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, और क्या इनके और इनके पेरेंट्स के बीच में कुछ बहुत डिफरेंसेस हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट. एंड कभी कभार हमने ऑब्जर्व किया होगा कि सिबलिंग्स मतलब दो सगे भाई बहन, मे भी पॉसिबल कि दो सगे भाई हों, और मे भी पॉसिबल कि दो सगे बहनें हों, और मे भी पॉसिबल कि सगा भाई और बहन हो. कभी कभार तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, एंड कभी कभी उनके बीच में हम देखेंगे कि काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी दिखाई पड़ते हैं. नाउ देर आर देर आर अलॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, विच कैन वंडर अस, जो हमें बिल्कुल ताजुब में डाल देंगे. आखिर ये बात, जो डिफरेंसेस हैं तो क्यों हैं, जो सिमिलैरिटीज़ हैं तो क्यों हैं. These are the several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics. So इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बायोलॉजी की जिस ब्रांच में मिलता है, दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स. ठीक है. सो इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द हेरिडिटी ऑफ कैरेक्टर्स, or which deals with the inheritance, we can say that it is genetics. This subject deals with the inheritance as well as the variation of the characters from parents to offspring. Okay, now this subject, which subject, genetics, deals with the inheritance. Now it deals with the inheritance. Now here we will discuss about two different terms. ठीक है, and we are going to discuss here in the genetics, we will discuss about two different terms. The first term we will discuss about heredity, and the second term which we are going to discuss right now is variation. ठीक है. So initially I am talking about heredity. What is heredity, what is inheritance, I will explain. Then later on we will discuss about the variation. ठीक है. दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ द करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. यानी कि मैंने पहले ही बताया कि जेनेटिक्स के अंदर हमें दो चीज़ों की स्टडी करनी है. फर्स्ट वन इज हेरिडिटी एंड द सेकंड थिंग इज वेरिएशन. ठीक है. इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. नाउ व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मीन्स it's a process. Inheritance, we can say that it's a process by which characters are going to be passed from parents to progeny, and it is the basis of heredity. Sometimes we are confused कि हम सोचते हैं कि यार हेरिडिटी क्या है एंड इनहेरिटेंस क्या है, क्या ये दोनों एक ही हैं, क्या इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है. ठीक है. बेसिकली हेरिडिटी मीन्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ठीक है. एंड हेरिडिटी की बेसिस कौन है? इनहेरिटेंस. यानी कैरेक्टर्स कब पास होंगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में? जब कोई ना कोई जीन पेरेंट से कहाँ जाएगा? ऑफस्प्रिंग में जाएगा. मीन्स जीन जाएगा तो डीएनए जाएगा, सच जाहिर सी बात है. ठीक है. तो सो वी कैन से दैट हेरिडिटी मीन्स पासिंग ऑफ करेक्टर्स. ठीक है. और इनहेरिटेंस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द, आखिर व्हाट इज द बेसिस ऑफ द पासिंग ऑफ द करेक्टर्स और द ट्रेड्स मीन्स जीन्स.
ठीक है, सिंपली वी कैन से दैट द पासिंग ऑफ द जीन्स इज बेसिकली इनहेरिटेंस। ठीक है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, यू माइट बी कन्फ्यूज इफ you have any confusion. So what is inheritance? The inheritance is the process of in by which the characters are passed from parents to their offspring. ठीक है, एंड हेरिडिटी इज ऑल्सो द सिमिलर थिंग, इट इज ऑल्सो हेरिडिटी मीन्स passing of features, passing of traits, passing of characters from or from one progeny to next progeny, from next progeny to their next progeny. And inheritance forms its basis, means inheritance is similar to the heredity, we can say that. ठीक है, while variation is the degree by which the progeny differs from their parents. Now since we know that the characters are passing from parents to their offspring, लेकिन फिर भी उनके बीच में कोई ना कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस किसकी वजह से आ रहे हैं? दीज आर ड्यू टू द वेरिएशन। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट, यानी वो कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज वेरिएशन। इज इट क्लियर? एंड ह्यूमन्स वर वेल अवेयर, ह्यूमंस जो थे पहले से ही बहुत, देखेंगे तो हमारी एंसेस्ट्री हम चेक करेंगे, ह्यूमंस न्यू फ्रॉम अर्ली 8000 टू 1000 BC दैट वन ऑफ द कॉज ऑफ द वेरिएशन वाज हिडन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्हें क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट से 8000 से 1000 साल पहले तक उन्हें ये शायद पता चल चुका था कि आखिर जो ये वेरिएशन आ रहे हैं, ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये किसकी वजह से आ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आ रहे हैं। And they exploited the variation that were naturally present in the wide population of the plants and animals to selectively breed and select organisms that possess desirable characters. तो उन्हें पता था कि यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो रहा है, देन ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में काफ़ी वेरिएशन आते हैं। तो उन्होंने इस वेरिएशन का फ़ायदा उठाया, उन्होंने अपने डिज़ायरेबल करेक्टर वाले जो प्लांट थे उन्हें डोमेस्टिकेटेड किया, और अपने डिज़ायरेबल करेक्टर वाले जो एनिमल्स थे उन्हें डोमेस्टिकेटेड किया। फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, थ्रू आर्टिफिशियल सेलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स, एग्जांपल साहिवाल काउ एंड इन पंजाब। ठीक है, क्योंकि काउ पहले तो वाइल्ड ही रही होगी, तो उसमें वेरिएबिलिटी आई, एंड वेरिएबिलिटी में वो वेरिएबल करेक्टर उन्होंने देखा जो उनके लिए डिजायरेबल था, और उससे उन्होंने एक नई ब्रीड तैयार कर ली, कौन सी? साहिवाल काउ की। ठीक है, हाउ एवर रिकॉग्नाइज दैट thought our ancestors knew about the inheritance of character and variation, they had very little idea about the scientific basis of the phenomenon. हालांकि मैं कहता हूँ कि they were well known about they have well knowledge about the variation but not too good. ठीक है, थी नॉलेज बट बहुत लिटिल बिट नॉलेज उनके पास थी। नाउ ये नॉलेज आगे बढ़ी, ये बढ़ी 19th सेंचुरी के बाद, और 19th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ, वहाँ पर आए ग्रेगर जॉन मेंडल, यू नो वेरी वेल अबाउट देम, इन 10th क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट हिम। ग्रेगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एज वेल एज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वन बाय वन वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवे वॉज मेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस, यानी 19th सेंचुरी के बीच बीच में लोगों की समझ में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट काफ़ी कुछ आ गया। ठीक है, ग्रेगर मेंडल conducted hybridization experiments on the garden pea for 7 years. बेटा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर द व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर नीट एग्जाम, अगर दोनों में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, किस पे एक्सपेरिमेंट किया, किस ईयर पे एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने 7 कंजिक्यूटिव ईयर तक उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, एंड द एक्सपेरिमेंट ईयर वाज 1856 to 63, और एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था, किसके ऊपर किया? पाइसम सटाइवम, इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द गार्डन पी। ठीक है, and then he proposed 3 different laws of inheritance. Now what are these? We are discuss them we will discuss them in future. ठीक है, during Mendel's investigation into inheritance pattern, it was for the first time that the statistical analysis and the mathematical logic were applied to problems in the biology. ये वेरी, इट वॉज इन वेरी फर्स्ट टाइम, ये बहुत पहली बार ये हुआ कि किसी बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट में इंट्रोड्यूस किया गया स्टैटिस्टिक्स को और मैथमेटिकल लॉजिक को। ठीक है, हिज एक्सपेरिमेंट हैज़ अ लार्ज सैम्पलिंग साइज, और उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। नाउ द व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, कभी कभी आता है कि व्हाट वर द मेथडोलॉजी ऑफ मेंडल बाय विच इट सक्सीडेड, तो आप लिखेंगे कि यार ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ऑफ इनहेरिटेंस, he used first time he used statistical and analysis and mathematical logic. ठीक है, as well as his sampling size was too large which have greater credibility
टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड। इसकी वजह से खूब ज़्यादा सारे उसने सैंपल लिए थे, क्योंकि ही चूज 7 डिफरेंट करेक्टर्स हैविंग 14 contrasting traits, ठीक है। Also, the confirmation of his interference from experiments on successive generation of his test plant proved that his result pointed to the general rules of the inheritance rather than being unsubstantiated आइडियाज़। तो उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो उन्हें प्रूफ मिला, प्रूफ मिलने के बाद क्या हुआ कि जो उन्हें डाटा मिला था जिसके बेसिस पे उन्होंने प्रूफ निकाले थे, वो प्रूफ बिल्कुल सटीक प्रूफ थे, ठीक है। एंड उन रूल्स के, उन रिजल्ट्स के बेसिस पे उन्होंने जो रूल्स प्रपोज किए ना, वो रूल्स बिल्कुल सटीक रूल थे। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड करेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिट ट्रेट, एग्जाम्पल टॉल और ड्वार्फ प्लांट। अब ना बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट की। मेंडल ने जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट का, तो उस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उन्होंने क्या किया, एक टाइम पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली 7 ईयर तक स्टडी की और 7 डिफरेंट कंट्रास्टिंग करेक्टर्स के बारे में बात उन्होंने की थी। बट एक टाइम पे उनके सक्सेसफुल होने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि एक टाइम पे उन्होंने बेसिकली पहले क्या किया, एक ही करेक्टर की स्टडी की। लेटर ऑन उन्होंने स्टडीज़ की, बट जो उन्होंने इनिशियल स्टेज पे जो उन्होंने स्टडी की, उन्होंने बेसिकली एक बार में एक करेक्टर को ध्यान पे दिया। जैसे उन्होंने क्या लिया, एक बार क्रॉस कराया, हाइब्रिडाइजेशन का क्रॉस करवाया, तो 2 प्लांट लिए और दोनों प्लांट में उन्होंने 2 अपोजिट करेक्टर लिए। फॉर एग्जाम्पल करेक्ट आई शुड हैव टू यूज़ द वर्ड ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने करेक्टर लिया हाइट, हाइट के 2 ट्रेड ले लिए उन्होंने। एक ड्वार्फ, ड्वार्फ जिसको कि उन्होंने ड्वार्फ बोलते यूज़ किया था वर्ड, इट इज़ बेसिकली शॉर्ट, ठीक है। और दूसरा टॉल, ठीक है। सिमिलरली उन्होंने सीड का कलर ले लिया, या तो राउंड सीड के प्लांट लिया, या अपोजिट जो जो उसके अपोजिट सेक्स का जो प्लांट था उसके पास रिंकल्ड सीड था, ठीक है। या कलर की बात करें तो येलो कलर लिया या ग्रीन कलर लिया, ठीक है। दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस, और इसके बेसिस पे उन्होंने अपने रूल्स को प्रपोज किया, विच वॉज एक्सपेंडेड ऑन बाय द लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरिटेंस इन दैम। सो आई एम कमिंग टू द पॉइंट। बाद में इनके जो एक्सपेरिमेंट थे इसे अदर साइंटिस्ट ने प्रूव किया। दीज आर द 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैविंग 2 अपोजिट ट्रेड्स। नाउ पहला देखेंगे, अगर आप पहला कैरेक्टर देखते हैं, शीट शेप, हेयर यू आर ऑब्जर्विंग राउंड शीड है कम्प्लीटली, या रिंकल्ड शीड है इसका अपोजिट। दूसरा जो कैरेक्टर था वो कलर, येलो एंड ग्रीन। तीसरा था फ्लावर का कलर, वायलेट एंड वाइट। चौथा है पॉट शेप, फुल एंड कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है यू आर ऑब्जर्विंग है, टेढ़ा मेढ़ा सा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फुल, और इन्फ्लेटेड भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। नाउ पॉट का कलर ग्रीन एंड येलो। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बिल्कुल जो फ्लावर हैं वो एक्सिस पे आपके एक्रोपिटल सेक्सेशन पे ग्रो करते हैं। वहीं टर्मिनल पे आप देख रहे हैं कि टर्मिनेट हो रहा है स्टेम है, और उसके टर्मिनेटिंग पॉइंट पे आपके फ्लावर्स अराइज हो रहे हैं। नाउ स्टेम हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ। सो देयर आर 7 कैरेक्टर्स: सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजिशन एंड स्टेम हाइट, एंड दीज हैव 2 अपोजिट ट्रेड्स, ठीक है। Now, Mendel conducted such artificial pollination, cross pollination experiment using several true breeding pure lines. Now, एक क्वेश्चन और आता है कि why Mendel selected these plants, ठीक है। तो there are some few reasons which suggest us that why Mendel have chosen that particular Pisum sativum plant. उसने केवल Pisum sativum को क्यों चूज किया? Because of the first point कि Pisum sativum का जो लाइफ स्पान होता है शॉर्ट होता है, 6 मंथ का मैक्सिमम इसका लाइफ स्पान होता है। दूसरा, इट शोज बोथ काइंड ऑफ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड शॉर्ट पॉलिनेशन, सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ दीज 2 पॉइंट्स, बेसिकली फर्स्ट पॉइंट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइफ स्पान, सेकेंड इट शोज बोथ क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। थर्ड जो रीज़न है, इट शोज 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ अ सिंगल करेक्टर। क्योंकि क्या था इनके पास, क्या था, एक करेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट मिल जा रहे थे, जिसमें स्टडी जो हो जा रही थी ईजी हो जा रही थी, ठीक है। नाउ मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पील है। ट्रू ब्रीडिंग का यहाँ मतलब, या तो ट्रू ब्रीडिंग मीन्स प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ, ठीक है, और प्योर येलो, प्योर ग्रीन, ठीक है। A true breeding line is one that, having undergone continuous self-pollination, shows the stable trait inheritance and expression of several generations. For example, which breed will be referred as true breed? ट्रू ब्रीड का मतलब ये है कि आई एम एक्सप्लेनिंग इन वेरी सिंपल टर्म्स। सपोज टॉल प्लांट के बीच में क्रॉस करा दें,
तो उनके अगर ऑफस्प्रिंग सारी की सारी टॉल हो रही हैं कई जनरेशन तक, तो हम कहेंगे कि ये प्योर ब्रीड है। अगर किसी भी एक जनरेशन में अगर आपको ड्वार्फ ब्रीड नज़र आ जाती तो आप समझेंगे कि वो ट्रू ब्रीड नहीं थी। यानी आपने 2-3 जनरेशन तक स्टडी करनी है। इफ इन ईच एंड एवरी जनरेशन यू आर गेटिंग ट्रू टॉल प्लांट, देन यू कैन कंसिडर इट दैट, और यू इफ इन 2-3 जनरेशन यू आर रेगुलरली गेटिंग टॉल प्लांट्स, तो आप समझ जाइए कि जो पेरेंटल जनरेशन मैंने यूज़ की थी वो प्योर थी। ठीक है। इफ अगर एक भी शॉर्ट मिल जाता तो आप समझो कि ये हाइब्रिड वैरायटी थी या हाइब्रिड ब्रीड थी। ठीक है। सिमिलरली जो रेसेसिव करेक्टर होते हैं, रेसेसिव करेक्टर तो हमेशा ही क्या होते हैं, ट्रू ट्रू ब्रीड होते हैं। ठीक है। Okay, Mendel selected 14 true breeding pre-plant varieties as paired, which were similar except the character with the contrasting trait. Some of the contrasting traits selected were smooth and wrinkled seed, yellow and green seed, smooth and inflated pod, green or yellow pod, and tall and dwarf plant. We already discussed about it. Okay. Now these are the characters you can easily study about here. The contrasting trait is studied by the Mendel in P. ठीक है। एंड फर्स्ट वन इज स्टेम हाइट टॉल एंड ड्वार्फ, फ्लावर कलर वायलेट एंड वाइट, थर्ड फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, फोर्थ पॉड शेप इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन और येलो, सीड शेप राउंड और रिंकल्ड, सीड कलर येलो एंड ग्रीन. So these are some basically contrasting traits of 7 different characters. So this was the Mendel's experiment, and when Mendel was experimenting on the Pisum sativum, ठीक है, he studied on basically 2 concepts according to your NCERT book. I am clearly telling you that. ठीक है. And we have to study here about the inheritance of one gene, means monohybrid cross, and we have to study about inheritance of 2 genes, dihybrid cross. ठीक है. So in the next video I will start inheritance of one gene, how the Mendel selected the Pisum sativum plant and how he crossed about them. Later on we will discuss about them, and I will also tell you that which different rules were proposed by Mendel based on the inheritance of one gene. So I think for today it's enough. ठीक है. And study once again yourself. If you have any doubt you can ask me by my comment section, or you can directly contact me. Thank you. Bye bye.